Assalamu alaikum everybody. Today we will continue our heat transfer lessons and the topic that we are going to focus on is radiation. इसका मतलब ये हुआ कि heat transfer के अंदर आपको मालूम है तीन forms of heat transfer होती हैं, conduction, convection and radiation. Conduction आप पढ़ रहे हैं, convection आप with the passage of time पढ़ेंगे और मैं आज focus करूँगा radiation के ऊपर. Or I will focus on radiation, which is the third mode of conduct of transfer of heat energy. Uh, Before I go on, I would like to tell you what you will be able to understand from today's lecture. या आज के learning objectives क्या हैं? At the end of this lecture, a student would be able to understand the mechanism of radiation. They will learn about the laws of radiation. Amongst these laws are the Stephen-Boltzmann law, the Planck's law, and the Wien's law. They will be able to understand the nature of different surfaces. जब मैं different surfaces की बात करता हूं तो ये मुझे बताता है कि ये मेरे पास black body है, opaque body है, gray body है, white body है, या surface कितना smooth है या rough है. That is what I mean by the nature of different surfaces. You would be able to derive the Kirchhoff's law of radiation linking emissivity to absorptivity. Kirchhoff designed a law which you will be able to focus on. You will understand the graph linking wavelength and intensity. There was a graph of wavelength and intensity. एक ग्राफ बनाया गया था. प्लैंक ने और वेन ने ये ग्राफ आपस में डिजाइन किया था. ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी को आपस में रिलेट करते हैं. आप उस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या उस ग्राफ के अंदर है. You would be able to differentiate between the terms total emissive power, monochromatic emissive power. Different terms होती हैं. टोटल इमिसिव पावर होती है, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर होती है, सिर्फ इमिसिव पावर होती है. ये सारी टर्मिनोलॉजीज को आप आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हो. Apart from that, you will understand the concept of a black body. In radiation, the black body is the most important thing because when you are determining everything, you need a standard. Your standard in radiation is a black body. There is in hypothetically there is no such thing as a black body. Black body जैसी कोई चीज नहीं होती है, मगर हमें उसको स्टैंडर्ड लेने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक अज्यूम करते हैं कि एक चीज है ब्लैक बॉडी जिसके अंदर टोटल रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन इसका 1 हो रहा होता है. इसको आप यूं समझें, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते हैं हम आइडल गैस की बात करते हैं और आइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं. आइडल गैस के अंदर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड लेने के लिए. हकीकत में आइडल गैस कोई चीज नहीं होती है. इसी तरह हकीकत में ब्लैक बॉडी कोई चीज नहीं होगी. सो आई रिपीट, देयर इज नो सच थिंग एज अ ब्लैक बॉडी. देन यू शुड हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ Lambert's cosine law and intensity of radiation. You will be able to solve problems linking all the concepts learned about the various laws, nature of surfaces and other terminologies regarding radiation. आखिरी पॉइंट यह है कि आप इन सारे जो एप्लीकेशंस आपने सीखे हैं, you would be able to use them to solve complex problems. अब रेडिएशन के अंदर प्लीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर 3 या 4 लॉज बोले हैं. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आज नहीं हुई ना, क्योंकि रेडिएशन की इसके बाद क्लास नहीं होगी, तो आपको फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा. अब प्लीज अटेंटिव रहिएगा. ट्राई टू बी अटेंटिव इन माई क्लास. डोंट लीव योर माइक्रोफोन्स क्लोज एंड गो टू स्लीप और डू सम अदर वर्क और प्ले लूडो और मल्टीटास्क, because this is an important class. If you do not take the class, you won't be able to do my assignment. तो आपको जो लॉज मालूम होने चाहिए वो स्टीफन बोल्ट्जमैन, प्लैंक्स, वेन्स, कर्शॉफ्स, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, 5 लॉ तो मैंने आपको यहीं बता दिए. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज रेडिएशन? Radiation is a mode of heat transfer in which energy is transformed across the system boundaries by means of electromagnetic magnetism. इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन
एक मोड है जिससे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है सिस्टम बाउंड्री के थ्रू बाय मैग्नेटिज्म। क्योंकि ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, लाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, लाजमी है इसमें भी एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है तो हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। when you did the Fourier's law in conduction, there is a temperature difference. When you do the law of convection, there is a temperature difference. Similarly, when you do radiation, there is a temperature difference between two bodies. Heat always transfers from a region of higher body to a region of colder body. रेडिएशन में एडवांटेज क्या है कि देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट रिक्वायर्ड। रेडिएशन के अंदर बॉडीज ने आपस में कनेक्ट होना लाजमी नहीं है। हीट कैन फ्लो थ्रू एम्प्टी स्पेसेस व्हिच इज कॉल्ड द वैक्यूम। यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है हाउ इज रेडिएशन डिफरेंट फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी how is this mode of heat transfer different from conduction and convection? Heat transfer in conduction and convection takes place only in the presence of the medium. First important point. Radiation does not require a medium. It is the only mode of heat transfer which can take place through a vacuum. Conduction and convection, they vary as a temperature difference to the first power. You've already started conduction. Have you seen the formula of conduction, or in the past 2 weeks were you introduced to the Fourier's law? यस सर, बताया था, अच्छा मास ट्रांसफर में पढ़ा था। अच्छा चलें, when you saw the Fourier's law you see that जो टेम्परेचर है T है उसका पावर 1 है, T के ऊपर कोई पावर नहीं है। अगर आप रेडिएशन का लॉ देखें तो इसके अंदर फोर्थ पावर होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा रेडिएशन में फोर्थ पावर कैसे है। T would be raised to power 4. So that is the main difference. Exchange between the heat of two bodies in radiation depends upon the difference between the temperature. Again, it is a temperature difference, but it is based on the fourth power. Fourth power means temperature raised to the power 4. Conduction and convection both are slow processes. Radiation is a fast process. Conduction and convection, they do not follow the laws of reflection and refraction. यानी कंडक्शन कन्वेक्शन के अंदर आप रिफ्लेक्शन नहीं फॉलो करते, रिफ्रैक्शन नहीं फॉलो करते। रेडिएशन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर फॉलोड। रिफ्लेक्शन, जितनी लाइट स्ट्राइक करती है उतने एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसको हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये की डिफरेंसेस थे between the conduction and convection and radiation. If you look at the image, the first image is radiation, purely radiation. You can see that the light is coming in the form of UV light, IR waves, infrared waves, और अर्थ के ऊपर देखें रिफ्लेक्शन हो रही है। The angle it's striking, it is reflected and then striking to the earth. So this is clearly showing that radiation, you can tell 2 or 3 points in this picture. First, the laws of reflection and refraction take place. Second, there is no medium, there is no contact. ये direct आ रही है in the form of electromagnetic waves. Right के ऊपर जिधर मैं अपना माउस hover करता हूँ, यहाँ पर देखें, for convection and conduction you need contact. Conduction जब होगा, conduction is when there is contact with the saucepan. Convection होगा by the density differences या fluid densities, again there is contact. Radiation देखें यहाँ पर है, where heat is being supplied. Radiation, there is no direct contact. Now look at this law. This law is known as the law of radiation. Law of radiation is sigma EAT4. इसके ऊपर हम बात करते हैं, अभी बात करेंगे। सिग्मा जो होगा, that is the Stefan Boltzmann constant. That is why you call this the Stefan Boltzmann law. इसके अंदर Stefan Boltzmann constant होता है। और रेडिएशन देखें, T की जो टर्म है, जो टेम्परेचर है, that is to the power of 4. Compare it with conduction and convection. Over here, conduction, Fourier's law. Fourier's law,
T has no power. T is 1. पानी चेक करना. T is 1, no power. Law of convection. Law of convection, H आप बाद में H के ऊपर जिक्र करेंगे, which is the heat transfer coefficient. You will get to know this when you do convection. What is the heat transfer coefficient? Again, look at T. There are two surfaces, surface 1, surface 2. There is no power सर on. जी. सर थोड़ा सा दोबारा बता देंगे, मैं होल्ड पे चली गई थी, वो कॉल आ गई. सर मैं होल्ड पे चली गई थी, कॉल आ गई थी. तो कॉल आ गई थी तो मैं इस पे तो रिपीट नहीं करूंगा, कॉल आपकी आई थी. सही है सर. मैं हाँ, अब ये आप किसी और से पूछेगा, ये कोई रीजन नहीं हुआ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, आप कॉल पे चली जाएं. नहीं, वो सर मेरे बाबा की कॉल आ गई थी तो इसलिए. तो अगर आप यहाँ देखें कन्वेक्शन एंड कंडक्शन के ऊपर, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन पावर 1 है. रेडिएशन अगर आप देखें, देयर इज पावर 4 ओवर हियर एंड अ पावर 4 ओवर हियर. So therefore, the difference between radiation and the other modes of heat transfer is that radiation, the temperature is always on based on power 4. In conduction and convection, it is based on power 1. Clear? यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर क्लियर है. चलें आगे आ जाएं. यस सर. सर ये P की जगह Q नहीं होना चाहिए था. इधर ये जो P इक्वल टू सिग्मा E, यहाँ पे हम लोगों ने वैसे Q पढ़ा था. P और Q एक ही चीज है दोनों. यहाँ पर ये P, सर ये P, जी सर ये वाला P. ये आप किसी तरह भी इसको डिनोट कर सकते हैं. ये एक डिनोशन है. बिल्कुल ऐसी बात है जैसे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में, यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इन सर्टेन केसेस इट इज डेल्टा U, इन सर्टेन केसेस इट इज डेल्टा E. मतलब एक ही चीज है ना सर, P और Q दोनों. अभी आते हैं इसके ऊपर बात, किस तरह आप इसको सिग्निफाई करेंगे. वैसे E से दिखाया जाता है. पावर 4 होती क्यों है? ये अब एक डेरिवेशन है, जिसने ये डिराइव किया है उसने फोर्थ पावर से बनाया है. When Stephen Boltzmann made the derivations, I don't know the history behind it, but they made an derivation to it. So that derivation takes it to power 4. अब ये we'll have to सर हम Google. लोगों को जो बताया था ना, हम लोगों को सिर्फ ये लो पढ़ाया था कि एमएसएफ पावर जो होती है ब्लैक बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर की. फिर उसी तरीके से वो हटा के जो है एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके सिग्मा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया. ये सारी चीजें डेरिवेशन करी थी हम लोगों ने, लेकिन फोर्थ पावर क्यों आई थी ये रीजन नहीं बताया था. तो इसको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, मैं भी देख लूंगा, मैं भी इसको गूगल कर लूंगा. मुझे रीजन नहीं मालूम है क्योंकि मुझे बेसिकली दे जस्ट डिड अ डेरिवेशन. तो वी कैन लुक एट इट इन लेटर. चलें. Important uses of radiation. Radiation is used in furnaces. Furnaces are important in your 5th semester. In your 5th semester, you will learn about fuel and combustion. उसमें combustion की बात भी होगी और furnaces की बात भी होगी. तो वहाँ पर आप ये देखेंगे furnaces और combustion के अंदर radiation use होता है. Nuclear explosions के अंदर, solar energy on the earth. That is the most significant use of radiation. जो आपको ये सोलर एनर्जी मिलती है. अच्छा, मैं बाद में भी इस बात को बाद में बोलूंगा, या आई विल कम ऑन दिस पॉइंट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस समवेयर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेडिएशन और द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. द टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन. अगर आप केल्विन के अंदर टेम्परेचर को चेंज नहीं करें, आपका स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ एप्लीकेबल नहीं है. आपका आंसर गलत हो जाएगा. स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ इज ऑलवेज इन केल्विन. तो अगर मैंने आपको कभी असेसमेंट के अंदर फ़ारेनहाइट में दिया, या आई गिव इट टू यू इन रैंकाइन, या आई गिव इट टू यू इन सेंटीग्रेड, ऑलवेज change your answer into Kelvin. Last year I gave a 10-mark question, and in the 10-mark question one student forgot to change it centigrade into Kelvin, and without checking the answer or the method I gave a straight 0, because if you do not know that, you cannot apply the Stephen Boltzmann law. So please do not make this mistake. I repeat, रेडिएशन के लिए हमेशा अपना टेम्परेचर
केल्विन में लीजिएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। द एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैसे तो आपको बहुत सारी ये चीजें मालूम होंगी, एफएससी में पढ़ी होंगी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय अ रेडिएटिंग सरफेस, इट इज नॉट इन कंटिन्यूएशन। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये कंटिन्यूएशन में नहीं होती, इसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं, या आपने अपने एफएससी में सुना होगा पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फोटॉन्स, इस तरह के वर्ड सुने थे। यस सर। तो ये वही फिनोमिना है। The energy which is released by a radiating surface is not continuous. It is in the form of successive and separate packets of energy called photons. अब photon को हम define कैसे करते हैं? A photon is defined as the smallest discrete amount of electromagnetic radiation. By discrete I mean वो measure हो सकता है, एक fixed amount होता है, discrete होता है, not something which is infinite. Discrete amount of electromagnetic radiation. Basic unit of light होता है ना, वो photon होता है. Photons are always in the motion and travel in vacuum. Photons can travel in vacuum because they are doing the electromagnetic radiation. Hence, electromagnetic radiation also can travel in vacuum at a constant speed of light. Speed of light होती है 2.998 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अपनी आसानी के लिए कभी कभी हम इसको स्पीड ऑफ लाइट को 3 into 10 to the power 8 भी लिखते हैं। Both are correct. This is referred to as the speed of light and it is denoted by c. Speed of light का क्यों जिक्र कर रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। The photons are transmitted through space as rays. The photon जो होते हैं वो rays के form के अंदर transmit होते हैं। The movement of the swarm of photon is known as electromagnetic waves. Photons travel at a speed of light in a straight path with unchanged frequency. अब इसको यूं अंडरस्टैंड कर लें, जब हम रेस की बात करते हैं क्या हमारे पास एक ही रे होती हैं? बताएं। नहीं सर, बहुत सारा है, अलग अलग, बहुत सारी गामा रेज बीटा, होती हैं। गामा बीटा और भी है। उस रेस के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? डिफरेंसेस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है? मैग्नेटिक होती जी, और फ्रीक्वेंसी उनके डिफरेंट हैं। पेनिट्रेट करती हैं सारी। होती है। मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड खराब है, इसको प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ये मुझे प्रॉब्लम्स थोड़े दे रहे हैं। अच्छा, बेसिकली फर्क क्या होता है कि उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेस की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, Speed of light would be same. The difference between the different rays would be the difference in frequency and the difference in wavelength. Frequency और wavelength के अंदर क्या फर्क होता है? चलें इसकी अभी बात करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ photons travel at a speed of light with unchanged frequency. When I am talking about unchanged frequency, I am talking about one specific form of radiation. यानी obviously radio waves और X-rays के अंदर there would be a difference in frequencies, but the frequencies of X-ray, if you compare X-ray, they will stay same, they will not change. या if you compare radio waves, they will not change. ये मतलब है unchanged frequencies का। बात समझ आई? Yes? रिपीट कर दें। दोबारा रिपीट कर दे सर। चलें, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 7 या 8 रेडियो वेव्स होती है, 7 या 8 टाइप्स ऑफ रेडिएशन वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको हम बोलते हैं। देयर आर 7 to 8 टाइप्स। बेसिकली दे डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। बाय रूल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, यानी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी या उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी वेव की होती है, कौन सी रेडिएशन की होती है? सबसे बड़ी आपकी होगी कौन सी होगी? रेडियो वेव्स की। यानी अगर रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या इंटेंसिटी ये क्या होगा? ये सबसे कम होगी। इसी तरह अगर दूसरे एंड के ऊपर गैमा रेस की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है तो इसकी एनर्जी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ये क्या होंगी? सबसे ज्यादा होंगी। सबसे ज्यादा होंगी। तो ये, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो टर्म अनचेंज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी तो दोनों की अलग है, रेडियो वेव की अलग है, गैमा वेव की अलग है, मगर जब वो स्ट्राइक कर रही है, अगर रेडियो वेव स्ट्राइक कर रही है एंड फर्ज करें उसकी फ्रीक्वेंसी इज 10 टू द पावर 3, वो 10 टू द पावर 3 रहेगी, वो 10 टू द पावर 5 नहीं हो सकती। या अगर गैमा रेस की फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा रे इज 10 to the power minus 15, that is going to stay 10 to the power minus 15. It will not change into another frequency for that particular electromagnetic wave. Clear हुआ? What I mean by unchanged frequency? सर एक क्वेश्चन है जी सर, जिस बॉडी के ऊपर रेज स्ट्राइक कर रही है, अगर वो बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर है तो सर उस सूरत में वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी रेज में से, तो ऐसे में क्या पॉसिबल है कि वो उसमें से इतनी ज़्यादा एनर्जी वो रिसीव कर ले कि उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए, इतना सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए? आमतौर पे चेंज नहीं होती है। और दूसरी बात, जब आप बॉडी की बात कर रहे हैं गुड एब्जॉर्बर की, तो सबसे पहली बात तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं होगी। हमारा जो फोकस होता है ना, वो एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम के ऊपर होता है, यानी पावर -6 से पावर 6 से पावर 8 तक होता है। वी बेसिकली फोकस ऑन द यूवी रीजन और द इंफ्रारेड रीजन। ये गैमा रेडियो वेव्स इसके ऊपर इफेक्ट करेंगी नहीं। फोकस हमारा एब्जॉर्बर का इन वेव्स पे होता है। और जो आपके तमाम लॉज जो बने हुए हैं ना, द वेन्स लॉ and the Planck's law, they are all based on these two waves. There is not much change in the frequency, even if it's a good absorber. Okay, sir. As the photon will approach the receiving surface, जब फोटोन आपका रिसीविंग सरफेस पे अप्रोच करता है, the wave motion is reconverted into thermal energy. जो आपका वेव मोशन है, वो एनर्जी, आपको तो मालूम है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दैट इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सारा हीट वगैरह उस लॉ से डिराइव हुआ है. सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, and this thermal energy which is partly absorbed, partly ये absorbed होगा, partly ये reflect होगा, partly ये transmit होगा through the receiving surface. अब यहाँ पर जो मैंने पहले point बोला था, या the point which I had mentioned before, the laws of reflection and refraction, they happen in electromagnetic radiation but not in conduction and convection. ये देखें, अगर energy reflect हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो लॉ है, ये लॉ क्लियरली फॉलो हो रहा है. उसका क्या नाम है? ये लॉ क्लियरली फॉलो हो रहा है किसका? रेडिएशन का. मतलब रेडिएशन के ऊपर आपके क्या मैं बोल रहा था, रेडिएशन के ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉलो होते हैं. The magnitude of each fraction will depend upon the nature of the surface. यानी कितनी लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो सरफेस है ना, वो कितनी थर्मल रेडिएशन रिसीव कर रहा है, यानी उसका नेचर क्या है. वो ब्लैक बॉडी है, वो एपेक बॉडी है, वो वाइट बॉडी है, या वो ग्रे बॉडी है. इसका जिक्र नेचर ऑफ सरफेसेस का हम थोड़ी देर में करेंगे. तो कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है. बात समझ आई? कोई क्वेश्चन यहां तक? एनी क्वेश्चन? नो सर. चलें. नो सर. All types of electromagnetic waves are classified in terms of wavelength.
जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वेवलेंथ की फॉर्म के अंदर क्लासिफाई होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज शोन एंड द डिफरेंस या आपको मैंने एक तस्वीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखा दिया है। जो मेन डिफरेंस या डिस्टिंक्शन होता है वो होता है फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जिसकी जिक्र मैं अभी कर रहा था। देखें, जो तीनों स्पीड ऑफ लाइट की हमने बात क्यों की थी? स्पीड ऑफ लाइट की इसलिए बात की थी, c इज इक्वल टू लैम्डा f, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, f इज द फ्रीक्वेंसी। c आपका क्या है? c की वैल्यू सब में चेंज नहीं हो सकती, c की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है, यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा उसका कम होगा। अगर आप ये डायग्राम देखें, फॉलो माय माउस, ओवर हियर one extreme end, radio waves. Compare the wavelength of radio waves, they are going into the 10 to the power 6, 7, beyond 10 to the power 5. Compare it with the frequency. Look how small the frequency is over here. Frequency कितनी कम है? Similarly, अगर यहाँ पर देखें, wavelength देखें, wavelength छोटी है, -11. But look at the frequency. The frequency is huge, which means that the energy of these waves is greater. Shorter the wavelength, greater the energy. कहीं पर आपको ये लफ्ज नजर आए ना, intensity, frequency, energy, they all mean the same thing. जिसकी frequency ज्यादा होगी उसकी energy ज्यादा होगी, उसकी intensity ज्यादा होगी। तो this is nothing but the electromagnetic स्पेक्ट्रम। अब यहां पर देखें, ये जो एरिया है ये इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है और यहां पर इन्होंने ये लाइन और ये लाइन बनाई है। इसका मतलब ये, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हमारा इंटरेस्ट जब होता है रेडिएशन के अंदर, वी आर इंटरेस्टेड इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर हम फोकस करते हैं, यानी हमारा फोकस इज ओनली बिटवीन 10 टू द पावर लेट्स से -6 एंड 10 टू द पावर -8, ultraviolet and visible light region. These are the region we are interested in, which talks about the red light, blue light, green light, but that is pure physics. But when we focus on radiation laws, our focus would be on this region. The emission of thermal radiation, यानी 10 to the power -4 to 10 to the power -7, depends upon the nature and the temperature of the state of emitting surface. यहाँ पर क्लियरली मैंने -4 और -7 लिखा है। ये जो रेंज है ये आपकी विजिबल लाइट की रीजन की रेंज है। इन द केस ऑफ गैसेस, वैसे तो इस रेंज के अंदर जो डिपेंडिंग फैक्टर होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे और इमिटिंग सरफेस पे डिपेंड करेंगे। अगर मैंने आपसे कभी पूछा कि व्हाट इज थर्मल रेडिएशन डिपेंडेंट अपॉन, सबसे पहले तो थर्मल रेडिएशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। उसके बाद वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। नेचर ऑफ सरफेस की बात बार बार आ रही है। बाय नेचर ऑफ सरफेस वी अगेन मीन whether it is the black body, whether it is the white body, whether it is the opaque body. ये होता है सॉलिड रीजन्स के लिए। जब हम गैसेस की बात करते हैं, इन द टर्म ऑफ गैसेस, डिपेंडेंस इन तीन चीजों पे तो डिपेंड करता है, बट देन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द इमिटिंग लेयर एंड द गैस प्रेशर। गैसेस के अंदर एक कंपोनेंट आ जाता है गैस प्रेशर। In our course we are not dealing with gases, but we should know that when we talk about gases, an extra term comes gas pressure, because every gas is going to exert its own pressure. Thermal radiations exhibit characteristics similar to those of visible light and follow optical laws. Again, अगर थर्मल रेडिएशन विजिबल लाइट को फॉलो कर रही है, विजिबल लाइट जो है वो ऑप्टिक लॉज फॉलो करते हैं। बाय ऑप्टिक लॉज वी मीन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो करती है, विजिबल लाइट करती है, तो थर्मल रेडिएशन भी करेगी। सो दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड व्हेन दे पास थ्रू द मीडिया।
अब बात होती है, अब काम की बात हो रही है, सरफेस एमिशन प्रॉपर्टीज। रेट ऑफ एमिशन, कोई भी रेट ऑफ एमिशन यानी किस रेट के ऊपर आपकी बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशन बाय बॉडी, दैट विल डिपेंड अपॉन थ्री मेन पैरामीटर्स। द फर्स्ट एंड foremost parameter, most important parameter, temperature of the surface. Number 2 criteria, the nature of the surface. Number 3 criteria, the wavelength or frequency of radiation. सबसे पहले आप टेम्परेचर को देखेंगे, नंबर 2 आप उसके सरफेस को देखेंगे, नंबर 3 आप देखेंगे कि उसका वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है उस रेडिएशन की। अब आपके लॉस का जिक्र होता है। सबसे पहले जब हम लॉस की बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक टोटल एमिसिव पावर करके। कहीं पर आपके पास बुक है तो इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चंस, a student gets confused in this. For example, I can ask you total emissive power, I can ask you monochromatic emissive power, I can ask you emissive power, I can ask you total rate of energy. These are four different things. Student क्या करता है, वो ये समझता है कि सारे emissive power है, गलत गलत कैलकुलेशंस करता है। पिछली दफा मैंने हीट ट्रांसफर का एग्जाम लिया था, उससे आइडिया हो गया था। तो इस पॉइंट को आज ही समझ लें, अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। आई विल ट्राई टू गो स्लो में करने की कोशिश करता हूं कि आपको बात ये समझ आ जाए। जब टोटल एमिसिव पावर की हम बात करते हैं तो ये होता है डिनोटेड बाय ई। द टोटल एमिसिव पावर, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted by a body per unit area and time. Per unit area and time, watt per meter square. तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो watt per meter square होंगे टोटल एमिसिव पावर के अंदर। जब आप अपने आंसर करेंगे प्लीज अपने यूनिट्स पे अहमियत दीजिएगा। अगर आपने यूनिट्स गलत लिखे तो आपका आंसर गलत है। अगर यूनिट कन्वर्जन की जरूरत हो तो उस यूनिट को कन्वर्ट कीजिएगा। आई वांट द आंसर्स इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के अंदर आंसर चाहिए होते हैं, तो अगर एसआई यूनिट के अंदर नहीं हो तो फाइनल के अंदर जाकर कन्वर्ट कर दें। टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? फ्लक्स दे सकते हैं। फ्लक्स आपने कहीं तो पढ़ा होगा ना, यू मस्ट हैव रेड फ्लक्स इन मास ट्रांसफर और इन हीट ट्रांसफर। यस सर, सर अभी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। सो इफ आई गिव हीट फ्लक्स और समथिंग, इट इज द सेम थिंग एज वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपने दिमाग में ये डाल दिया कि टोटल एमिसिव पावर क्या है। टोटल एमिसिव पावर इज द टोटल रेडिएशन दैट इज एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी ये इधर टाइम का जिक्र नहीं आ रहा, मगर टाइम इस तरह होता है कि रेडिएशन जो हो रहा था एक स्पेसिफिक टाइम में हो रहा होता है। और अगर आप ये भी बोलें कि टाइम में कैसे हो रहा है, कोई बोले पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टाइम कैसे हो रहा है? व्हाट इज अनदर सिंबल ऑफ व्हाट? व्हाट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में? जूल्स पर सेकंड। जूल पर सेकंड आ गया। टाइम, टाइम आ गया। क्या हो गया? अगर मैं इसको जूल पर सेकंड देखूं तो व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग इट इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अगर ये जूल पर सेकंड की टर्म में लिखता तो इसका दूसरा फॉर्म में लिखता, इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन जूल अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। इसको कहीं लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये स्लाइड के अंदर नहीं है तो इसका दूसरा फॉर्म ये भी लिखा जा सकता था, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, अगर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ये यूनिट दे दी है। The emissive power of a black body, according to a Stephen Boltzmann, is proportional to the absolute temperature to the fourth power. स्टीफन बोल्ट्जमैन ने अपनी तरफ से एक लॉ बनाया था
उसका लॉ क्या था जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं, विच इज दिस लॉ, EB इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, फोर्थ पावर के ऊपर। शुरू में एट द स्टार्टिंग someone asked me why we've seen is P and E the same thing, I said yes, आम तौर पे we signify it as E। तो जिसने वो क्वेश्चन पूछा था वो आंसर हो गया। अब जब मैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करता हूं, EB जो है दैट इज द ब्लैक बॉडी, EB इज ब्लैक बॉडी। सिग्मा की जो वैल्यू है that is the Stephen Boltzmann constant which is given to you. You do not need to memorize this value, but if you know this value, very good. 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin 4. Stephen Boltzmann constant भी पावर 4 के ऊपर है। और आखिरी जो चीज है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होंगे? केल्विन। दोबारा मैं बोल रहा हूं, फॉर दिस लॉ प्लीज टेक योर टेम्परेचर इन केल्विन। सो द टोटल एमिसिव पावर, द यूनिट्स आर वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? this law where my mouse is moving, this law is nothing but the Stephen Boltzmann law of radiation. It is the first law of radiation and it is the law which is also known as the total emissive power. यानी अगर आपको total emissive power ढूंढना है कोई भी बॉडी का, तो आप total emissive power ढूंढेंगे by the Stephen Boltzmann law. EB is equal to sigma T to the power 4, जिसके यूनिट्स होंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। By B, I do not mean black body. That body can be a black body. B is body. अगर वो black body नहीं हो, white body हो, तो उसको E body लिखेंगे, EB लिखेंगे। It basically means the energy of the body या emissive power of the body based on Boltzmann constant, temperature, power 4. Clear? सर अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो हम किस यूनिट में इसको सॉल्व करेंगे, वॉट पर मीटर स्क्वायर में या फिर जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर? न्यूमेरिकल मैंने दिया है, आप इसको देखिए, उसको दिखाऊंगा मैं आपको। अगर वैसे आप सॉल्व करेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, ये इसके स्लाइड हमें मिल सकते हैं, ये जो स्लाइड आप पढ़ा रहे हैं? रिकॉर्डिंग है ना आपके पास? जी सर। रिकॉर्डिंग में स्लाइडें हो जाएंगी ना सारी? ठीक है सर, ठीक है, ओके। सही है सर। ये ओके, थैंक यू। ये पिछले तो EB हम यूज कर रहे हैं दोनों, एक में हम यूनिट ले रहे हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, दूसरे में वॉट ले रहे हैं। दोनों फार्मूले सेम ही है ना सर? दोनों फार्मूले तो सेम ही है। मैंने अभी दूसरे नीचे वाले वाले में एरिया भी है ना, मैंने नीचे वाले का अभी जिक्र ही नहीं किया, आप नीचे वाले पे पहुंच गए। मैं अभी आ रहा था नीचे वाले पे। देखें, सो पहला वाला इक्वेशन आपको समझ आ गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, कैसे मैंने बॉडी लगाया। दूसरे वाले में फर्क देखें। दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला है द इमिसिव पावर ऑफ बॉडी जब आपको एरिया दिया हुआ हो, या क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी। इफ द क्वेश्चन सेज टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर के यूनिट होते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। इफ द क्वेश्चन सेज द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी के यूनिट होते हैं वॉट, बिकॉज व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी, वॉट के दूसरे यूनिट क्या हैं, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड रेट हो गई, एनर्जी की रेट हो रही है विथ यूनिट टाइम, तो द रेट ऑफ एनर्जी, तब आप वॉट लगाएंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है रेट ऑफ एनर्जी ढूंढने के लिए आप एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम नहीं है, इसके अंदर एक एरिया का टर्म आ गई है। जब आप एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकेंड यहाँ से और मीटर पर सेकेंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होएगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी टर्म्ड एज टोटल एमिसिव पावर, दैट विल बी टर्म्ड एज द रेट ऑफ एनर्जी जूल पर सेकेंड और द वॉट। डिफरेंस समझ आया? सर जी सर अब जो ये ब्लैक बॉडी के लिए कह रहे थे कि ब्लैक बॉडी के लिए नहीं है और ब्लैक बॉडी के लिए है, सर ये हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे एक एमिसिविटी का फैक्टर आता है जो एफ या ई से डिनोट होता है ना, स्मॉल ई से या एफ से, तो वो ब्लैक बॉडी के लिए वो 1 होता है। तो इसी वजह से जो है उस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये स्पेशली तौर पे ब्लैक बॉडी के लिए नहीं है ये वाला फॉर्मूला, ये जनरल बॉडी के लिए। अभी भी इसके ऊपर जिक्र करते हैं। मैं अभी मैं उधर तक पहुंचा नहीं हूँ। जनरल बॉडी के लिए कल मैं जो पढ़ रहा था तो जनरल बॉडी के लिए मैंने वही चीज देखी थी कि इसकी जो रेंज है 0 से लेके 1 तक की रेंज में लाया करता है जो एमिसिव पावर होती है ना बॉडी की। तो हर सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है। तो वो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के लिए 1 ली। अगर कोई और दूसरी बॉडी होगी जैसे कि आपने व्हाइट बॉडी बोला या कोई और बॉडी, तो उसकी 0.5 हो सकती है, 0.6 हो सकती है। तो उसका फिर फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा हमें जो कि ई या एफ होगा। बिल्कुल करवाना पड़ेगा। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें, या तो आप आकर पढ़ा लें या मैं पढ़ा लूं। आप मुझे सब्र तो करें पूरा। मैं ये सिर्फ पूछ रहा था। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मगर आप ई भी कह रहे हैं, ई बी से पहले मैंने कहा था ई बॉडी। अगर रिकॉर्डिंग में होगा ये मैंने मेंशन किया था ई बॉडी। अब मुझे आप 2 मिनट, मैं यही पूछ रहा था, मुझे ये सही है 2 मिनट मुझे दे दें। अगर आप पहले पढ़ कर आए हैं अच्छी बात है, मगर 2 मिनट तो मुझे दे दें। मैं आगे तक गया नहीं हूँ। आपसे पहले किसी ने ये बोल दिया कि ये वॉट क्यों है और वॉट मीटर पर स्क्वायर क्यों है। मैं उधर तक पहुंचा ही नहीं हूँ अभी तक। मैं एक जगह रुका हुआ हूँ। आप लोग पता नहीं किस स्पीड में जा रहे हैं। 2 मिनट तो दे दें मुझे आप। चलें, मगर आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। जब आप कोई दूसरी बॉडी करेंगे तो उसमें एमिसिविटी आती है और फिर आपको एमिसिविटी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एमिसिविटी का फैक्टर आप नहीं यूज कर रहे तो देन इट इज अज्यूम्ड दैट व्हाटएवर योर बॉडी इज, इट इज द ब्लैक बॉडी। कह रहे चलें। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था टोटल एमिसिव पावर। अब एक बात आती है मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? मोनोक्रोमैटिक, मोनो का क्या मतलब होता है वैसे अगर देखा जाए? 1 को बोलते हैं। 1 बोलते हैं, सही है। मोनो often necessary to determine spectral distribution of energy radiated by the surface। कभी कभी नेसेसरी होता है कि आपको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी रेडिएटेड बाय सरफेस ढूंढना पड़ता है। कोई भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted per unit wavelength varies at different wavelength। पर यूनिट वेवलेंथ का मतलब कोई भी आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ले लें। अगर आप कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, उसकी जो वेवलेंथ है, उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर वैरी करेगा। उसका जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड है वो डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर वैरी करेगा एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी आप कोई भी टेम्परेचर ले लें और कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ ले लें, उसका जो रेडिएशन है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर वैरी करेगा। जब आपको इसका एमिसिव पावर वैल्यू, एमिसिव पावर ढूंढना पड़ता है, इसका एमिसिव पावर ढूंढना पड़ता है कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, तो उधर आप मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर यूज करते हैं। उधर आप मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर यूज करते हैं फॉर specifically for one particular wavelength. That is the difference between total emissive power and monochromatic emissive power. Total emissive power is the radiation for the entire surface. Monochromatic emissive power is the radiation is the energy per unit time per meter square
पर वेवलेंथ, यानी फॉर वन स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं, दिस इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन इमिसिव पावर का ही है, दिस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड per unit area of the surface per unit wavelength, यानी सेम वेवलेंथ। तो इसके अंदर ये एडिड फैक्टर हो जाता है कि मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए डिटरमिन करते हैं। अब क्योंकि इसका ये भी रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? इट इज द मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर। इसके यूनिट्स क्या होंगे? द यूनिट्स आर गोइंग टू बी सेम। एमिसिव पावर के यूनिट्स होते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो कहने की बात ये, वेदर इट इज द टोटल एमिसिव पावर or whether it is the monochromatic emissive power, the units are going to be watt per meter square. The only difference is total emissive power is found for the entire body. The monochromatic emissive power is found for one particular wavelength. किसी को आप बेस लेकर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई मसला है यहाँ पर? यूनिट इज गोइंग टू बी द सेम, यूनिट इज गोइंग टू बी द सेम, द ओनली थिंग इज द डेफिनेशन। अब बात करते हैं एमिशन फ्रॉम अ रियल सरफेस एमिसिविटी। यहां पर वो बात आई। पहले तो मुझे ये बताएं, द एमिसिव पावर फ्रॉम अ रियल सरफेस इज गिवन बाय, अब बॉडी की आप बात कर रहे हैं कोई भी रियल सरफेस के अंदर, एमिसिविटी E इज इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा T4। इधर मैंने A लिख दिया है। A इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं इस इधर जो क्वेश्चन है दैट इज द रेट ऑफ एनर्जी, बिकॉज यहां पर रेट ऑफ एनर्जी की बात आ रही है, यूनिट इसके वॉट आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता व्हाट इज द एमिसिव पावर फॉर अ बॉडी, तो ये फॉर्मूला क्या होता? ये फॉर्मूला क्या लिखता मैं एमिसिव पावर के लिए? ए हट जाता, ई नहीं हटता, ए हटता। आपने ए बोला, ई बोला? ये बोला है सर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं ना व्हाट इज द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी वुड बी emissivity multiplied by the Stefan-Boltzmann constant multiplied by t to the power 4। उसके यूनिट क्या होंगे? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है द, व्हाट इज इट सिग्निफाइंग? द emissivity, the rate of energy of that particular body with a specific emissivity। मैं कैसे बोल सकता हूं ये रेट ऑफ एनर्जी है? ये रेट ऑफ एनर्जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर A मल्टीप्लाई हो रहा है, और A मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर कट जाएंगे, ये मुझे वॉट देगा। यानी ये मैं इसको एमिसिव पावर नहीं बोलूंगा। एमिसिव पावर अगर ये होता तो इसके यूनिट होते वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब बात की जो थोड़ी देर पहले समवन सेड के ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी इज अज्यूम्ड टू बी 1। If the black body emissivity was assumed to be 1, then this E would have been cancelled and your formula would just simply have been emissivity of the body is equal to sigma T4. But in the case of another body, which could be a white body, opaque body, gray body, this emissivity factor is always added. This emissivity factor is given in the question. If I talk about another body, I will either give you the emissivity factor or I will ask you to calculate the emissivity factor। दोनों तरीके हो सकते हैं, मगर अगर मैंने कोई emissivity factor नहीं दिया और ये बोला कि body is assumed to be black body, तो आप emissivity factor को neglect कर देते हैं। You assume that the emissivity factor is equal to 1। क्लियर है?
सर जी सर क्लियर। सर मैं यही सवाल एक्चुअली पूछ रहा था कि वो जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें एमिसिविटी फैक्टर 1 था, तो वो स्पेसिफिकली तो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए हो गई ना, वो हर किसी बॉडी के लिए नहीं होगी। मैंने भी आपको यही बोला था कि आप 2 मिनट रुक जाते तो ये आगे आ रहा था, यही बात मैंने आपको बोली थी। खैर सर वो नीचे बी लगा हुआ था ना, तो वो तो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए हो गया। अगर मैं बी वैसे बी लगा है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है। मैं यूजुअली जब ब्लैक बॉडी को सिग्निफाई करता हूं ना, तो मैं ई ब्लैक लिख देता हूं जस्ट टू मेक इट क्लियर, मगर वो बी उस वक्त उस केस के अंदर वो बी ब्लैक बॉडी के लिए ही है, क्योंकि वो सिग्मा 1 अज्यूम कर रहे हैं। यूजुअली जो आपको सवाल मिलेगा ना, वो ब्लैक बॉडी के लिए सवाल मिलता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, वेयर ई इज द एमिसिविटी ऑफ द मटेरियल। अब एमिसिविटी क्या होता है इसको देख लें। एमिसिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ अ बॉडी टू रेडिएट हीट, यानी एक बॉडी कितनी हीट रेडिएट कर सकती है, इसको हम एमिसिविटी बोलते हैं। इट इज ऑल, ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द ratio of the emissive power of any body to the emissive power of a black body at equal temperature, यानी emissivity is equal to E upon EB। पहले तो मुझे ये बताएं इसके यूनिट क्या होंगे। नो यूनिट रेशियो सर नहीं होगा, रेशियो है, इट इज अ रेशियो, emissivity has no units, that is the first thing। अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। एमिसिविटी ऑफ द एमिसिविटी है ना, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। यानी अगर आपने कोई भी एक ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर ढूंढा, कैसे ढूंढते हैं ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर? बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एमिसिव पावर इज फाउंड एट सिग्मा टी पावर 4। आपको कोई वैल्यू मिली 1000, अज्यूमिंग आपको मिली 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो एमिसिविटी ऑफ एन अदर बॉडी होगी, दैट इज गोइंग टू बी द एमिसिविटी ऑफ द सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाय द एमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी। इससे एक चीज तो जाहिर आपको मैं ये बता दूं, द एमिसिविटी कैन ओनली बी बिटवीन 0 and 1। 1 से बढ़कर आपकी एमिसिविटी नहीं आ सकती। अगर आपकी एमिसिविटी 1 से ज्यादा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। द मैक्सिमम एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज 1, जो कि ब्लैक बॉडी के लिए होती है, जो विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन रियल, बट फॉर अजम्पशन पर्पसेस वी अज्यूम इट टू बी 1। इससे ये जाहिर हो गया दैट द एमिसिविटी ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, देखें these are two different terms, emissivity and emissive power, they are not the same thing। emissivity ये रेशियो है या कितना वो रेडिएट कर रहा है, कितना वो रेडिएट कर रहा है। emissive power यूनिट्स होते हैं, तो दोनों को आप आपस में मिक्स अप नहीं कीजिएगा। जब मैं emissive पावर की बात कर रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि any emissive power of another body is 100% going to be less than a black body, यानी ब्लैक बॉडी का टोटल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि अगर मेरा माउस देखेगा, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू एमिसिव पावर ऑफ अनदर बॉडी, अगर ये ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से ज्यादा आ गई, तो फिर आपका एमिसिविटी इनवैलिड हो गया। क्योंकि 1 से ज्यादा भी आ सकता है। मोर देन 1 क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था ऐसा नहीं होगा, वरना आंसर 1 से ज्यादा आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं। 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए कोई भी एमिसिव पावर कोई भी बॉडी का ब्लैक बॉडी से कम होगा। अब देखें, अब 2 तरह के सवाल हो सकते हैं। एक तरह का सवाल तो यह है कि मैं आपको एमिसिविटी दे दूं, मैं आपको बोल दूं एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज 0.56, सही है, मैंने आपको बोल दिया 0.56, और मैं आपको ये बोलूं कि कैलकुलेट द emissivity of, calculate the emissive power of that body। एक सवाल तो ये है।
अब ये सवाल के लिए आपके पास डेटा नहीं है, मगर ये सवाल के पास आपके पास ये डेटा है कि आपको मालूम है कि ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था दैट अज्यूम द emissive power of the black body is 100 watt per meter square. If I know that this is 0.56 and I know this is 100, I can easily calculate the emissive power of the body. What would be the emissive power of the body? 100 multiplied by 0.56, which will give me, what will it give me? 5.6, नहीं sorry, 56 watt per meter square. यही आएगा। समझ आई बात? Yes, sir. Clear है? That is one form of the question. Second form of the question ये होता कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता, आपको मैं ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कैलकुलेट कराता, फिर मैं आपको इस तरह का सवाल देता, suppose that another body has an emissive power 65% of the black body. Calculate the emissivity. तो आप क्या करते? अगर आपको मालूम है ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या है, एमिसिव पावर क्या है 100, आपको मालूम है कि ये जो है ये 65% ऑफ द ब्लैक बॉडी है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 65 मल्टी। तो आपको एमिसिविटी मिल जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 100 0.65। बात समझ आई? Yes, sir. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एमिसिविटी एंड एमिसिव पावर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एमिसिविटी के कोई यूनिट नहीं होते, एमिसिव पावर के यूनिट होते हैं। इफ यू वांट टू डिफाइन एमिसिविटी, the emissivity can be defined as the emissive power of your given body divided by the emissive power of the black body. जब emissive power of the given body divided by black body होगा तो दोनों के emissive power units कट जाएंगे। ये फॉर्मूला था पॉइंट 1। पॉइंट 2, the emissivity has no units, it is a ratio. Point 3, the emissivity cannot be more than 1 because the maximum amount of emissive power is for a black body. The value of emissivity varies for different substances ranging from 0 to 1. Black body के लिए we assume that the emissivity is equal to 1. इसीलिए when we talk about the black body, the radiation law is sigma T power 4. For a white body, the surface is assumed to be 0. White body के लिए हम assume करते हैं कि emissivity 0 है। और कोई भी दूसरी बॉडी हो ना, कोई ग्रे बॉडी, उसकी वैल्यू 0 to 1 होगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं दैट कोई एमिसिविटी 0.57 है तो ये किस तरह की बॉडी है? दिस इज अ ग्रे बॉडी। 0.75 है, ये भी ग्रे बॉडी है। सो एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, that is a gray body, and gray body may vary with temperature and wavelength. अच्छा चले, मुबशिर प्लीज क्लोज द रिकॉर्डिंग फॉर 5 minutes. सर एक सेकंड 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले एमिसिविटी मतलब एक सेकंड मुबशिर आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी? सर अभी चल रही है। क्लोज इट, 5 minute ब्रेक।